Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our first chapter of the second book, which basically talks about India, people and economy. And in this, basically, we are talking about everything related to our, you can say, population in terms of its distribution, density, growth, and composition. So this is basically regarding this chapter is basically talking about aspects of Indian population. Okay, so we have already somewhere, you can say, we already have an idea of what exactly is population density or population distribution or population composition in terms of its basic definition and its basic meaning. This is what we have already done in our previous book, जो अपनी first book है geography की, है ना? So here we are talking about these aspects in terms of India. Okay, so we have already done about, you can say, distribution of population and density of population, how it is different from one area to the other area. We also talked about growth of population in India in various phases, and we also did about the population growth in terms of regional variation. जगह एक जगह से दूसरी जगह कैसे अलग है हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द, यू कैन से, वेरियस सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का है या इंडियन, अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करें तो एवरी सेक्शन की डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड जो वर्किंग फोर्स है वो कौन सी है. एंड स्पेसिफिकली इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डन अबाउट द एडोलेसेंट एज. एंड ऑब्वियसली कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे जाके हमारी कंट्री का समवेयर मेन इकोनॉमिकली बैकबोन जैसे बनेगी, मेन बेस बनेगा, तो इन पे कैसे ध्यान रखना चाहिए. एंड दिस इज ऑल व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. ओके, so population composition is basically, you can say, study of population and geography with you can say covering and analyzing many different things like age, gender, place of residence, ethnic characteristics, tribal composition, linguistic composition, religion wise, marital status wise, literacy and education, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मतलब हर बेसिस पे हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन किस चीज, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं कि कितने एरिया रूरल एरिया, कितने जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, कितनी है जो अर्बन एरिया में रहती है. जेंडर वाइज क्या हम बोलेंगे कॉम्पोजिशन है. इसके अलावा लैंग्वेज के वाइज, रिलीजन वाइज, लिटरेसी वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, एवरीथिंग जो है, हर फील्ड जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो हम ओवरऑल इसको बोल देते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. तो हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज बेसिकली distinct field of study within population geography, where we analyze age, sex, place of residence, ethnic characteristics, tribe, you can say tribal composition, religion, marital status, literacy, education and occupational characteristics. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम कि इन्हीं को थोड़ा डिटेल में और अलग अलग हेड्स के अंदर अच्छे से स्टडी कर लें. ओके, so let us first start with the rural and the urban composition. Now the composition of population with respect to their place of residence is again very important indicator कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक कैसी है वहाँ, और स्पेसिफिकली हमारे जैसी कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है एज इन डेटा के फॉर्म में अगर देखें तो 2011 के अकॉर्डिंग 68.8, दैट इज अराउंड 69% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है. तो हमारे लिए तो ये जानना और जरूरी है कि कैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ
population is, you can say, distributed in rural and urban areas. तो rural और urban areas में कैसी composition है, that is what is more, you can say, important for country like us to understand. Now let us again look at some data. अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया जो है इट हैज 6,40,867 villages. ठीक है, again I am repeating, around we have 6,40,867 villages according to the census of 2011. Out of, you can say, somewhere इसमें से हम देखेंगे कि 5,97,608, that is around 93.2% of the total villages जितनी हैं are inhabited villages. ठीक है, that means हमें पता है properly लोग रहते हैं यहाँ. ठीक है, now however ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल पॉपुलेशन का, ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द कंट्री. ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में एक पर्टिकुलर सेम परसेंटेज जो है वो विलेज में रहते हैं और उसी का सेम परसेंट मतलब इक्विवेलेंट या जो भी उसके जो रिमेनिंग है उतना परसेंट अर्बन एरियाज में रहते हैं. इट इज नॉट सो. यहाँ पे भी बहुत वेरिएशन है. कैसे? we will notice that states like Bihar and Sikkim जो है वहां पे हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन होती है. लाइक विच ऑफ द एरियाज? बिहार, सिक्किम. whereas कुछ स्टेट जैसे गोवा और महाराष्ट्र है have only little over half of the total population residing in villages. So we can clearly see कि एक बहुत wide variation है in terms of people living in the rural areas in every state. अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में बहुत स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन होती है. यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पे रूरल पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है. अगर मतलब एक्सेप्ट एक एरिया है दादरा एंड नागर हवेली जहां पे 53.38% है रूरल पॉपुलेशन, बट स्टिल वो एक एक्सेप्शन है. उसके अलावा बाकी यूनियन टेरिटरीज में जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है. साइज ऑफ विलेजेस भी वेरी करता है. ये मतलब नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ पीपल लिविंग वेरी करता है. कहीं पे तो विलेजेस बहुत स्मॉल होती है और कहीं पे विलेजेस बहुत लार्ज होती है अकॉर्डिंग टू साइज ऑल्सो. ठीक है, like it is less than 200% in the hill stations of northeastern India, western Rajasthan and run of Kutch, and as high as 17,000% in the states of Kerala and in parts of Maharashtra. मतलब किसी किसी विलेजेस में तो बहुत कम लोग रहते हैं और कहीं कहीं विलेजेस का इतना बड़ा साइज है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और इतना ज्यादा एरिया है कि अपने कभी कभी 17,000 के अराउंड भी हो जाते हैं ऑफ ईच विलेज. ठीक है, अगर हम इसका एक डीप एनालिसिस करें, एक थॉरो एग्जामिनेशन करें कि किस हिसाब से रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इन मतलब इन इंडिया, तो हम अगेन देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है. नाउ अगर हम बात करें इन समवेयर कि किस टाइप का अगर हम बोलते हैं वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट. ठीक है, सो दैट मीन्स कि समवेयर जो डिफरेंसेस हैं या जो हम बोलेंगे वेरिएशंस है, इसका क्या मतलब है? बिटवीन टू स्टेट्स एंड विद इन टू स्टेट. ओके, इनके बीच में भी हम देखेंगे कि जो अर्बनाइजेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है. सो सिंपल टर्म्स में हम अगर ये जो दो टर्म है ताकि अपने कंफ्यूज ना हो, इंटरस्टेट का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट मतलब होता है in between the state itself. Okay, so basically interstate और intrastate जो है यानी in between the state
एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये जो अलग अलग मीनिंग है ऑफ दीज टर्म्स also help us to understand the kind of rural and urban variation। और इसमें हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज प्ले करती है, माइग्रेशन। So thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India reveals that both at intrastate and interstate level, the relative degree of urbanization and the extent of rural-urban migration regulates the concentration of rural population। यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी और किस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ पे अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं या रूरल में, वो डिफाइन करता है दो चीजों से। एक तो कि रूरल अर्बन माइग्रेशन कैसे है, यानी कितने लोग रूरल एरिया से क्या करते हैं, अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं ये। और ऑब्वियसली यही एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि जिसके कारण लोग जो है रूरल से अर्बन एरियाज में जाएंगे। और अगर वो स्टेट इन अदर टर्म्स अर्बनाइज भी है ज्यादा, इसका मतलब रूरल पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। सो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो रिलेटिव डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ दैट एरिया, ऑब्वियसली ज्यादा अर्बनाइज होगा तो खुद ही रूरल एरियाज कम होगी। और दूसरा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, कितने लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं जनरली ऑब्वियसली रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ, उससे भी अपने जो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है वो क्लियर हो जाता है या कैसा है वो डिफाइन करता है। तो इसी को अगर हम और डिटेल में और समझना चाहें तो हम देखेंगे कि जो प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में इज क्वाइट लो। इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज 31.16% समवेयर इज क्वाइट लो, बट अब ग्रेजुअली विद टाइम इसमें बहुत ज्यादा क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, एंड दैट टू एट अ फास्टर रेट, because we know now either areas are also getting urbanized, most importantly people are moving towards the urbanized areas। ठीक है, सो दो अभी तक तो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कम है परसेंटेज फॉर्म में, बट अगर हम देखें रिसेंट टाइम्स में फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है ओवर दीज रिसेंट डेकेड्स, फ्यू इयर्स। ठीक है, नाउ जो ग्रोथ रेट है ऑफ अर्बन एरियाज have increased basically because of the increased economic development and also the improvement of health and hygienic condition and the other factors that are available in the urban areas for good living condition, good economic opportunities, because of which people are moving towards the urban areas। जो distribution of urban population है obviously उसमें भी वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि वो भी भाई सब जगह ऑलमोस्ट सेम है, समवेयर ज्यादा है समवेयर कम है। तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब जो है रिसेंट डेकेड्स में और रिसेंट इयर्स में बहुत इंक्रीज दिखा रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और किसी किसी एरिया में तो बहुत फास्ट रेट पे ग्रोथ हो रही है। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि डेवलपमेंट जो है अर्बन एरियाज की बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मेनी अदर थिंग्स अवेलेबल देयर, जिसके कारण जो रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन का क्या मतलब, रूरल से अर्बन की तरफ जो माइग्रेशन हो रही है वो बढ़ती जा रही है। ओके, सो समवेयर हम यही देखेंगे कि ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वी ऑलरेडी नो द रीजन बिहाइंड इट। ओके, एंड जो रीजंस है हमें पता है कि देयर आर फेवरेबल कंडीशंस which are available for you can say as compared to the rural areas। तो clearly हमें पता है कि urban areas जो हैं वहां पे मेन ऐसी चीजें अवेलेबल है जिसके कारण लोग आते हैं। इसके अलावा हमें पता है मेन रोड लिंक्स है, रेल रोड्स बहुत डेवलप हो गए हैं नदर्न इंडियन प्लेन्स में,
बिकॉज ऑफ विच समवेयर क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज जो है वहां की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है. सो हम देखेंगे अर्बन रूरल माइग्रेशन इज क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ अर्बन एरियाज अलोंग द मेन रोड, जहाँ पे मेन रोड्स है, रेल रोड्स है नदर्न प्लेन्स में, इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, ये जो बेसिक रूट्स हैं, लुधियाना, जालंधर, यानी जहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा है, चाहे वो रोडवेज के हो, चाहे वो रेल रूट के थ्रू हो, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, ऑलवेज दे आर वांटिंग टू मूव टू द अर्बन एरिया. In the agriculturally stagnant parts of the middle and the lower Ganga plains, या फिर तेलंगाना या non irrigated area of Rajasthan, few hilly tribal areas of northeast and the flood prone areas of peninsular India and the few parts of eastern parts of Madhya Pradesh, जो urbanization की डिग्री है वो लो ही है. बिकॉज समवेयर हम बोल सकते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रही. अगर हम लोअर गंगा और मिडल गंगा प्लेन्स की बात करें तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया है. ओके, तेलंगाना और कुछ नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ये प्रॉब्लम है, नॉन इरिगेशन है वेस्टर्न में. तेलंगाना में भी देयर इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो इतना नहीं हो पा रही है. रिमोट हिली एरियाज जो है या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज या जहाँ पे फ्लड ज्यादा आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहां पे अर्बनाइजेशन इतनी नहीं हुई है. तो अर्बनाइजेशन ओवरऑल बहुत जगह हुई है और ज्यादा हुई है जहाँ पे लिंक है, चाहे वो रेलवेज हो चाहे रोड हो. तो जैसे कोलकाता मुंबई बेंगलुरु, कोलकाता मुंबई तो है, इसके अलावा जैसे बैंगलोर मैसूर के बीच में, मदुरई कोयम्बटूर, अहमदाबाद सूरत के बीच में, दिल्ली कानपुर, लुधियाना जालंधर, ऐसी मूवमेंट ज्यादा हो रही है फ्रॉम अर्बन एरियाज टू दीज डेवलप्ड एरिया. और कुछ एरियाज में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही. सो बेसिकली जो हमने रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की बात की है, यहाँ पे अपने क्लियर है कुछ चीजें कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी रहती है, रूरल. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है. और चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द बेटर कंडीशंस अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज. तो अर्बनाइजेशन और अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है विद टाइम, दो इसमें भी बहुत वेरिएशंस है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो दिस वाज अबाउट द रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन. अब अगर हम बात करें अबाउट लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली हमें पता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट. अगर हम देखें जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ग्रायरसन, तो इन्होंने बोला है समवेयर इसके हिसाब से 179 लैंग्वेजेस है इंडिया में और 544 जो है डायलेक्ट्स है. ठीक है, दैट मीन्स हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी टाइप की वेरिएशन है यहाँ. ठीक है, तो अगेन डायलेक्ट्स क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज जो एक एरिया से दूसरे एरिया जब हम मूव करते हैं तो उसका बोलने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है. ठीक है, तो उसी एरिया की बेसिकली स्पेशल लैंग्वेज को किस तरीके से बोला जाता है, उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना डायलेक्ट. तो 179 तो हमारे लैंग्वेजेस हैं और 554 जो है डायलेक्ट्स हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो मॉडर्न इंडिया में वी हैव स्टडीड इन आवर civics in I suppose 10th class कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में इंक्लूडिंग हिंदी, है ना, और बहुत सारी नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस. सो इतनी सारी जब अपने पास लैंग्वेजेस हैं तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी तो कॉम्पोजिशन अलग होगा इंडिया का. सो अगर हम देखें अमंग द शेड्यूल लैंग्वेजेस इसमें मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, समवेयर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो लैंग्वेजेस हैं. सो इसमें जो स्पीकर ऑफ हिंदी है उसमें हमें पता है हाईएस्ट परसेंटेज है. हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी. और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप जो है इंडिया में वो है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी.
ओके, तो संस्कृत अपनी एंशियंट लैंग्वेज है और बोडो और मणिपुरी बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज और नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो हाउएवर हमने ये नोटिस किया है कि जो लिंग्विस्टिक रीजन्स है इंडिया में, उनकी ऐसा नहीं है कि एकदम शार्प या डिस्टिंक्ट बाउंड्री है कि इतने एरिया तक तो लोग यही लैंग्वेज बोलेंगे और एग्जैक्टली इसके बाद कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। एकदम डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, ओके, शार्प या डिस्टिंक्ट बाउंड्री। रादर ऐसे लगता है ग्रेजुअली मर्ज हो रही है, बहुत बार ओवरलैप भी होगी। एक लैंग्वेज दूसरे एरिया में पहुंचने से थोड़ा थोड़ा उसका बोलने का तरीका चेंज होगा, और हो सकता है जो दो रीजन है उसके बॉर्डर के अराउंड के एरियाज जो है वहां पे दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और थोड़ा सा उनमें चेंज हो जाएगा उनका बोलने का तरीका, ठीक है। तो उनके फ्रंटियर जोन्स में हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो है वो बहुत बार क्या होगी, ओवरलैप भी हो जाएगी, कहीं पे मर्ज होगी, कहीं पे ओवरलैप होगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। जो स्पीकर्स हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज, यानी हमने जो लैंग्वेज है उसको 4 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया है, और फिर उनकी सब फैमिलीज होते हैं, फिर उसके ब्रांचेस और ग्रुप्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है कि लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो है बेसिकली कहाँ बोली जाती है। तो अगर हम देखें तो जो अपनी एक फैमिली है जिसको हम निषाद बोल सकते हैं या ऑस्ट्रिक बोल सकते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रोनेशियन बोलते हैं, इसके और सब ब्रांच है जैसे मुंडा है, मोन खिमेर है। ये ज्यादातर मेघालय में, निकोलैंड आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार में से जो निकोबार आइलैंड्स है वहां पे, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कुछ आउटसाइड इंडिया जो है ये लैंग्वेज बोली जाती है, और इसकी फैमिली और सब फैमिली। नेक्स्ट जो अपनी लैंग्वेज है वो है द्रविडियन। तो जो बेसिकली द्रविड़ा से आई है, और इसको हम देख लेंगे कि इसकी जो सब ब्रांचेस हैं वो है साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और नॉर्थ द्रविडियन, ठीक है। और ये बोली जाती है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। आई सपोज क्लास यू कैन क्लियरली सी कि ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बहुत सारे एरियाज में स्प्रेड है, और हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं ना उसको ही इन्होंने, मतलब मेन 4 फैमिलीज से आते हैं, फिर उसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है अपनी साइनो तिब्बतन किराता। तो तिब्बतो म्यांमारी जो है इसकी सब फैमिली है, और साइनीज चाइनीज है। तो ग्रुप और इसके जो सब ग्रुप ब्रांचेस जो हैं, तिब्बतन, हिमालयन, नॉर्थ असम और असम म्यांमारी। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बेसिकली बोले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसी एरिया से आए, उसके आसपास से, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं इंडो यूरोपियन, या जिसको हम आर्यन बोलते हैं, इंडो आर्यन, ये हमारी ईरानियन, दिस इज डार्डिक एंड इंडो आर्यन, ये ब्रांचेस हैं इसकी, ग्रुप्स। ये कुछ पोर्शन आउटसाइड इंडिया में बोली जाती है जो हमारी ईरानियन है, देन डार्डिक जो है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इंडो आर्यन जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। तो यानी जो मेन फैमिली है उसकी सब फैमिली है, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग एरियाज में बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा मोन खेमर जो वो मेघालय निकोबार आइलैंड्स में,
और जो मुंडा है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ इन सारे एरियाज और आउटसाइड इंडिया में। फिर हमारी जो द्रविडियन में साउथ द्रविडियन है, तो साउथ से आइडिया लगा सकते हो, तमिलनाडु से कर्नाटका, केरला, और सेंट्रल जो है वो आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, और जो नॉर्थ द्रविडियन है वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। साइनो तिब्बतन जो है तिब्बतो हिमालयन वाली जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड है, नॉर्थ हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। नॉर्थ असम वाली अरुणाचल प्रदेश में है, और असम और म्यांमारी वाली जो है वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह। इंडो आर्यन में ईरानियन जो है वो आउटसाइड इंडिया है, ये इंडो यूरोपियन में। और डार्डिक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, और इंडो आर्यन जो है वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा में बोली जाती है। तो क्लियरली हमें पता है कि जो हमारी लैंग्वेजेस है, सबसे पहली चीज तो कि ऐसी अपने पास बहुत सारी लैंग्वेज फैमिली से ओरिजिनेट हुए हैं, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगह बोले जाते हैं, विच स्लाइटर चेंज या ब्रांचेस, सब ब्रांचेस सेम फैमिली के चेंज होके हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज कॉम्पोजिशन। जस्ट डू रिमेम्बर दिस 4 फैमिलीज एंड यू कैन से ये टेबल जो है बेसिकली कर लेना कौन कौन से एरिया में। कुछ तो अपने सिंपल है, जैसे स्पेशली अगर द्रविडियन वाले बोले तो साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ जो है वो क्लियरली विजिबल है। ओके, इसे याद करना मुश्किल हो जाएगा, सॉरी अदरवाइज अगर याद ऐसे रखोगे अलोंग विद द लोकेशन तो आसान रहेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। जैसे तिब्बतो हिमालयन का याद रखो कि जो उस साइड पे है, तिब्बत की साइड पे है, थोड़ा नॉर्थ साइड पे जो है, और इस साइड पे असम और म्यांमारी जो है ये कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या कॉम्पोजिशन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ट्राई टू रिमेम्बर इट, स्पेशली जो फैमिली नेम्स है और थोड़ा बहुत इनकी लोकेशन। सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज and the linguistic composition of you can say India. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट द रिलीजियस कॉम्पोजिशन। जब हम रिलीजन की बात करते हैं क्लास, वी नो अगेन, जब भी हम इंडिया की बात करेंगे हमें पता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हर चीज में ही हम बोलेंगे डाइवर्सिटी है। हमने रूरल अर्बन देख लिया, हमने लिंग्विस्टिक देख ली। अब हम जब रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमिनेंट फोर्स है। अगर हम बात करें चाहे कल्चर से रिलेटेड, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे रिलीजन के बेसिस पे डिपेंडेंट होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं हम नोटिस करेंगे कि रिलीजन के हिसाब से अलग अलग एरिया पे रहते भी हैं। सो ऑब्वियसली जब हम रिलीजन से रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, एंड कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स इंडिया में कितने हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हर रिलीजन ग्रुप के लोग जो हैं वो ज्यादातर कहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट रिलीजन, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड अदर रिलीजन्स एज वेल। तो कहाँ पे कौन से अपने मतलब पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और उसके बाद सारे जो है वो कहाँ पे किस जगह पे रहते हैं। ठीक है, सो दिस टॉपिक now we'll start in our next class. Okay, in detail we'll study about the various religion and their composition and the other aspects, how do they determine कैसे लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, and how does this plays an important role. So today we have done about the rural and the urban composition and the linguistic composition. Okay, so if you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems, and we'll solve the problem, we'll discuss and solve the problem. Okay, so this is it for today. Now we'll meet in the next class. Okay.